4 روز کے دوران 3 آپریشنز میں 54 دہشت گرد جہنم واصل ہوئے ہیں، 42 قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی نیوز بریفنگ بتایا، پولیس کے 27 اہلکاروں اور پاک فوج کے 11 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ فتنہ الخوارج نے ہنا اڑک میں معصوم لوگوں پر حملہ کیا۔ زیارت میں پولیس اہلکاروں نے 15 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا۔ دہشت گردوں نے گھیرا تنگ ہونے پر 18 پولیس اہلکاروں کو شہید کر دیا۔ خاران اور دالبندین میں آج 14 دہشت گردوں کو ہلاک کیا۔ 4 روز میں بلوچستان میں دہشت گردی کے 3 بڑے واقعات ہوئے۔ پہلا واقعہ 4 اور 5 جولائی کی رات کو پیش آیا۔ ببرائی کا جو علاقہ ہے ہنا اڑک کا، جو فتنہ الخوارج کے دہشت گرد ہیں، انہوں نے وہاں کی لوکل جو پاپولیشن ہے ان پہ حملہ کیا۔ 4 معصوم شہری ہیں ہمارے، وہ شہید ہوئے اور 6 زخمی۔ سیکنڈ جو واقعہ ہے یہ 6 جولائی کو پیش آیا۔ منگی ڈیم جہاں سے کوئٹہ کا پانی آتا ہے، اس کے قریب زیارت میں علاقے میں فتنہ الخوارج کے جو دہشت گرد ہیں انہوں نے ملٹی ڈائریکشنل ایک اٹیک کیا اور 15 انہوں نے جو خارجی ہیں ان کو جہنم حاصل کی۔ 9 پولیس ینگ بوائز لیڈ ڈاؤن دیئر لائفز فرام بلوچستان پولیس۔ تو وہ جو باقی وہاں بچے تھے، وہ پولیس کے ہمارے جوان جو بہادر تھے، وہ ان کو یرغمال بنا کے لے گئے۔ وہاں سے نیو کہ یہ گھیرا بالکل تنگ ہو چکا ہے، تو ان بزدل گھٹیا منش کے لوگوں نے وہ جو 18 جوان تھے بلوچستان کے بہادر سپوت، ان کو شہید کر دی۔ تو پہلے دن ہمارے 9 بہادر پولیس کے لڑکے شہید ہوئے، آج 18 تو ٹوٹل 26 ان کے خارجی مارے گئے۔ تیسرا واقعہ جو آج پیش آیا ہے، آپریشن کے اوپر کانوائے، آرمی کانوائے واز ان دی ایریا آف ڈیلا بندر، انگیجمنٹ ہوئی ہے اس کانوائے کی ڈی ایل اے والوں کے ساتھ۔ 11 فوج کے جوان، 1 جے سی او اور 10 جوان شہید ہوئے ہیں اور 14 جو سے ہیں بی ایل اے کے دہشت گرد مارے گئے۔ 2 آپریشنز جو سے ہیں ہم نے کیے ہیں آج، ایک خاران میں جہاں پر 6 اور دالبندین میں جہاں پہ 8، یہ دونوں فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد مارے گئے۔ 3 میں نے آپ کو بڑے آپریشنز بتائے، ان میں 4 سویلین پہلے اور بعد میں پولیس کے ہمارے جوان، فوج کے جوان۔ تو ٹوٹل ہماری جو شہادتیں ہیں وہ 42 قیمتی جانیں اس ملک کی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے اپنی جانیں سپرد کی ہیں۔ 54 دہشت گرد جو سے ہیں جو ہمارے پاس کنفرمڈ ہیں ڈیڈ باڈیز جو کہ جہنم حاصل ہوئی۔ رائٹ ناؤ دی سچویشن از دیٹ دی انگیجمنٹ از گوئنگ آن ایٹ ملٹیپل پلیسز اینڈ آل آف دیم ول بی براٹ ٹو دیئر لاجیکل اینڈ۔ پاکستان میں دہشت گردی کے پیچھے بھارت کا ہاتھ، دشمن کو بلوچستان کی ترقی اور پاکستان کی کامیابی برداشت نہیں ہو رہی۔ کوئی مائی کا لال ریاست پاکستان کو ڈرا یا دھمکا نہیں سکتا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے دشمن کو خبردار کر دیا، کہا کراچی میں رینجرز کیمپ پر حملے کی پلاننگ بھی افغانستان میں ہوئی۔ افغان طالبان رجیم دہشت گردوں کو افرادی قوت فراہم کر رہی ہے۔ زیادہ تر ہلاک دہشت گردوں کا تعلق افغانستان سے ہوتا ہے۔ دہشت گردی کے معاملے پر فیلڈ مارشل اور حکومت کا موقف واضح ہے۔ کروا رہا ہے ہندوستان، وہ اینیمی قوتیں ہندوستان کے ساتھ جن کو پاکستان کی عزت، پاکستان کی خوشحالی اور سٹیبلٹی برداشت نہیں ہوتی، اینڈ دے آر یوزنگ the territories under the control of this illegitimate Afghan Taliban regime. The majority of the people, once we encounter them, we kill them, we engage them, تو یہ افغانی ہوتے ہیں۔ یہ کراچی میں آپ نے حال ہی میں یہ جو آپریشن ہوا جہاں پہ انہوں نے وہ رینجرز کی ایک انسٹالیشن پہ ورکشاپ پہ اٹیک کیا، 4 حملہ آور تھے، 3 اس میں افغانی تھے۔ ہول پلاننگ، ہول ایکوپنگ، ایوری تھنگ واز ڈن فرام افغانستان۔ یہ آپ کے خیال میں یہ جو واقعات ہو رہے ہیں، ایک وندر میں ہو رہا ہے، ایک آپ کا جو سا ہے ببرائی میں ہو رہا ہے، منگی ڈیم میں کے پاس ہو رہا ہے، اینڈ ملٹیپل لوکیشنز، یہ ایسے ہی ہوئی جا رہے ہیں، انکوآرڈینیٹڈ۔ No, there is a scheme behind it, there is a mastermind behind it, and there is an intent behind it, and there is a logistics behind it, there is an operational sequence behind it، جس میں یہ فیسیلیٹیشن ہے وہ افغان طالبان رجیم پرووائڈ کر رہا ہے، مین پاور وہ پرووائڈ کر رہا ہے۔ آپ کو پاکستان کے عوام کی سٹیبلٹی سے پرابلم ہے، یو ڈونٹ وانٹ بلوچستان ٹو پراسپر۔ تمہیں کوئٹہ کے پانی کے جانے کی پائپ لائن سے پرابلم ہے، تمہیں ہر اس چیز سے پرابلم ہے جو کہ بلوچستان کے عوام کے لیے ہے۔ وی ہیو ریزالو اینڈ کلیئرٹی، دس آرمڈ فورسز under the leadership of the field marshal has absolute clarity, under the political guidance of the government has absolute clarity what to do with them. We will hunt you and we will hurt you everywhere. ہمیں اس جنگ میں ہر صورت بہر صورت کامیابی حاصل ہوگی، کیونکہ ہم آبنائے ہرمز میں ایک بار پھر کشیدگی، امریکی فوج کی 3 آئل ٹینکرز پر حملے کا الزام لگا کر ایران کے 80 سے زیادہ فوجی اہداف پر بمباری۔
जजीरा क़शम, खार्ग, सिरक और बंदर अब्बास धमाकों से गूंज उठे। ईरान की नेवी एहलकार की शहादत की तस्दीक, तेहरान का भी पलट कर वार। बहरीन और कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डों समेत 85 मकामात पर हमले कर दिए। सदर मसूद पज़ेश्कियान इराक का दौरा मुख्तसर करके वापस तेहरान पहुंच गए हैं। बहरी जहाज़ों पर हमले का इल्जाम, अमेरिका के एक बार फिर हमले, ईरान का भी जवाबी वार, खित्ते में कशीदगी बढ़ गई। अमेरिकी सेंटकॉम के मुताबिक ईरान के जजीरे किशम, खार्ग, सीरक और बंदर अब्बास पर हमले किए। साहली निगरानी के निज़ाम और मिसाइल तनसीबात को निशाना बनाया गया। ईरान ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की, कीमत चुकाना होगी। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान का भी पलट कर वार। बहरीन और कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डों समेत 85 मकामात पर मिसाइल दागे। पासदारान इनकलाब के मुताबिक बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट हेडक्वार्टर और कुवैत में अल सालम एयरबेस पर हमला किया गया, जबकि बोशहर में दिफाई निज़ाम के जरिए अमरीकी MQ-9 ड्रोन को भी मार गिराया। तर्जुमान पासदारान इनकलाब ने अमरीकी हमलों को इस्लामाबाद मेमोरेंडम की खिलाफ वर्जी करार दिया। कहा वाशिंगटन के ये हमले शहीद रहबर आला की ताज़ियाती तकरीबात से तवज्जो हटाने के लिए थे। ईरान आबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी मुदाखलत की इजाज़त नहीं देगा। हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों और तेल बरदार टैंकरों के लिए महफूज रास्ता सिर्फ वही होगा जिसका तयन ईरान करेगा। आगे बढ़ते हुए नाज़रीन आपको बताएं कि खानेवाल में अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। ज़ेरे तामीर मकान का लेंटर गिर गया है। 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, एक ज़ख्मी हुआ है। रेस्क्यू के मुताबिक जाँ बहक अफराद में मालिक मकान और एक मजदूर शामिल है। ज़ख्मी की हालत भी तशवीशनाक है, जिसे नश्तर अस्पताल मुल्तान रेफर कर दिया गया है। एक बार फिर खुशामदीद और नाज़रीन, लाहौर में बादल बरस पड़े हैं। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और हवा चलने से मौसम खुशगवार हो गया। मज़ीद जान लेते हैं समगी नुमाइंदा मायरा हाशमी से। जी मायरा, क्या इत्तलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, दिन भर की शदीद गर्मी के बाद सूबाई दारुल हुकूमत का मौसम खुशगवार हो गया है। इस वक्त आसमान पर काली घटाएं छाई है और कहीं तो बरस भी पड़ी है, लेकिन मजीद बरसने को भी तैयार है। आज गर्मी और हब्स का जोर जो है वो मुकम्मल तौर पर टूट चुका है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने ये खुशखबरी भी सुना दी है कि अगले 24 घंटों के दौरान बारिश का ये सिलसिला जो है वो वक्फे से जारी रहेगा। दर्जा हरारत आज कम से कम 26, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 36 डिग्री रहने के इम्कान है, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि मौसम के मिजाज तो हसीन हो गए हैं। लेकिन PDMA ने अलर्ट भी जारी किया है कि मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र जितना हो सकता है शहरी बोसीदा इमारतों और बिजली के खंभों से दूर रहे, ताकि खुद को वो मुकम्मल तौर पर महफूज रख सके। तो अब तमाम लाहौरी तैयार हो जाए इस मौसम को अपने अंदाज से एंजॉय करने के लिए। जी, ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई का सफ़र आखिरत। इराक़ के शहर नजफ़ में नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। शहीद रहबर आला के आखिरी दीदार के लिए सड़कों पर अवाम का समंदर है। अमरीका और इसराइल से इंतकाम के नारे, जसद खाकी आखिरी दीदार के लिए करबला ले जाया जा रहा है। कल मशहद में इमाम रज़ा के रोज़े की हदूद में उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। और अमरीकी सदर की तनकीद काम कर गई है। नेटो ने ईरान पर अमरीकी हमलों की हिमायत कर दी है। अनकारा में सरबराही इजलास के मौके पर सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि तेहरान को निशाना बनाना बहुत ज़रूरी था, वो जंग बंदी की खिलाफ वर्जी कर रहा है। और ऐसे में वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का रवा हफ्ते कोयटा के दौरे का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म को सूबे की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सूबे का अमन अमान यकीनी बनाने के लिए अहम फैसले भी इस दौरे में मुतवक्के हैं। तो अहम खबर आ रही है कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का रवा हफ्ते कोयटा के दौरे का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म को सूबे की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सूबे का अमन अमान यकीनी बनाने के लिए इस अहम दौरे में अहम फैसले मुतवक्के हैं। काना जैसे अलमनाक सानहात के बाद पंजाब हुकूमत ने महफूज घरों को तरजीह बना लिया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम का दायरा कार बढ़ाने का फैसला किया है। अपना घर महफूज घर प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत होने वाला अपनी छत अपना घर से मुतालिक अहम इजलास में मंसूबे के तहत अपना घर महफूज घर प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। प्रोग्राम के तहत 2 नई कैटेगरीज की मंजूरी दी गई। मखदूश या कमजोर छतों वाले घरों की मुरम्मत के लिए 5 लाख रुपए तक की माली मुआवनत दी जाएगी। घर पर नई मंजिल की तामीर के लिए 10 लाख रुपए तक का सूद से पाक कर्ज भी फराहम किया जाएगा।
वजीर आला ने नई कैटेगरी सिर्फ 3 रोज में आवाम के लिए लॉन्च करने की हिदायत कर दी। इजलास से खिताब में वजीर आला मरियम नवाज का कहना था कि बहरान में बयानात नहीं, इकदामात नजर आना ही गुड गवर्नेंस है। उनका कहना था कि जिन 2000 बेघर खानदानों को हुकूमत ने मुफ्त प्लॉट दिए, अब उनको घर बनाने के लिए कर्जा भी दिया जाएगा। वजीर आला मरियम नवाज ने घर बनाने के लिए कर्ज पहले से भी आसान बनाने की हिदायत कर दी। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि अपनी छत अपना घर पंजाब हुकूमत का फ्लैगशिप मंसूबा है। इसमें किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि मकसद सिर्फ घर तामीर करना नहीं बल्कि हर खानदान को महफूज छत फराम करना है। अब्बास नकवी, समा, लाहौर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने पार्लियामेंटेरियंस प्रिविलेजेस बिल पर नजरसानी की हिदायत कर दी है। स्पीकर को तमाम पार्लिमानी लीडर्स का इजलास बुलाने का भी कह दिया है। KP काबीना से खिताब में कहा है कि जिन निकात पर आवाम का एतराज़ है उनको तब्दील किया जाए। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात का भी जायज़ा लेकर नजरसानी की जाए। बानी PTI चाहते हैं मीडिया जहां ज़रूरी समझे खुलकर तनकीद करे। दीगर सूबों में मुखालिफ सहाफ़ियों को हिरासा, तशद्दुद और गायब कर दिया जाता है। KP में ऐसे हथकंडे नहीं अपनाए जाते। आइंदा तमाम इक़दामात अवामी मफाद और राय के मुताबिक किए जाएंगे। सुई सदरन गैस में 1 अरब 60 करोड़ रुपए बोनस की अदायगी का इंकशाफ हुआ है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की ज़ेली कमेटी ने एग्जेक्टिव्स को परफॉर्मेंस बोनस देने पर वजाहत तलब कर ली है। ऑडिट के मुताबिक कंपनी मुनाफे में ना होने के बावजूद इनाम दिया गया। कमेटी के कन्वीनर सैयद नवीद कमर ने कहा, आप ही फैसले करते हैं और आप ही बोनस भी दे देते हैं। डे टू डे जॉब का इजाफी माली फ़ायदा नहीं देना चाहिए। सुई सदरन इंतज़ामिया ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि बोनस कंपनी के बोर्ड से मंजूर शुदा सर्विस रूल्स के तहत दिया गया, जो कंपनी के मुनाफे से नहीं बल्कि इनफरादी कारकर्दगी से मुंसलिक था।